Hello everyone. Today we are going to start a new topic, polynomials. Now before we start with polynomials, let's have a brief recap of certain terms related to it. Like we say, polynomial is an algebraic expression. Let's see what an algebraic expression is. Algebraic expression क्या होता है? Algebraic expression is nothing but a combination of literals or numbers, we can say, variables combined by mathematical operators. Operators में हमारे क्या आ जाते हैं? Plus, minus, multiplication and division. So you can see all these are algebraic expressions. Here I have taken the variable x. ये जो x है, these are the variables 5, -7, 2. These are literals or numbers, we can say, and here the variable y is also used. So all these are algebraic expressions in which variable and literals are combined by mathematical operators. Now, when we put certain condition on these algebraic expressions, we get a polynomial. What are these conditions? First of all, I am referring to polynomial in one variable only. One variable means when we are talking about any expression, सिर्फ एक ही variable की बात करेंगे. यहाँ पर variable क्या है? x. x is there in all of them. यहाँ पर variable y है. यहाँ पर भी variable y है. तो एक ही variable है. We are not combining variables here. That is separate thing. Okay. Now it is a in one variable, सिर्फ एक ही variable लेंगे हम, और उसमें मेन चीज क्या चेक करनी है आपको? x यानी कि वेरिएबल जो है उसकी पावर जो है वो हमेशा हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वी हैव 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. सो दीज आर द परमिसिबल पावर्स. उसके अलावा और कोई पावर नहीं होनी चाहिए. लाइक इन दिस केस वी हैव -5. So this -5 is negative integer, so this one is not a polynomial. Here it is 7 upon y, so this can be written as 7 into y raised to power -1. Again the power is -1, so again this is not allowed. Here it is root 2x. This I can write as root 2 into root x. Further root x is what? X raised to power 1 by 2 plus 3. X raised to power 1 by 2. Again we can see here only non-negative integers are allowed, fractions are not allowed. So this one is again not a polynomial. This one again it's 6 into cube root of y or y raised to power 1 by 3. Again the power is a fraction, so it is not allowed. So we can see only the permissible powers are, we can have 1, 3, 2 here. Here it is 1. It's no variable is there, so I can write this as x raised to power 0. 0 is a non-negative integer, so again this is allowed. So all these expressions, algebraic expressions, are polynomials. Okay. So here this is again the power is 2, 1. No power is there, so we can write this as x raised to power 0. Again here the power is 4. Here x की power है 1. Root 2 is there, but the power of x is 1. It's not root 2x. This is different. Okay. So x की power 1. So again this is a polynomial. 19 by 3. There is no variable, but I can always write it as x raised to power 0, y raised to power 0, z raised to power 0, any variable. Same thing is true for this also. This can also be written as x raised to power 0. Here the power of x is 0. Okay. Now let's do some classification of polynomials. We can classify them on the basis of two things. First is number of terms and second is on the basis of degree. We are going to study about degree also. Now on the basis of number of terms, as we have seen, there are some mathematical operators. अभी mathematical operators क्या करते हैं? पूरे expression को, पूरे polynomials को different parts में divide कर देते हैं. इन parts को हम कहते हैं term. So first वाले polynomial में हमारे पास 3 terms हैं, और जब हम टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव साइन भी कंसीडर करना है. सो इसमें हमारी 3 टर्म्स हैं, 5x -7x³ और 2x². सेम वे वन ऑपरेटर इज देयर, सो वी हैव 2 टर्म्स इन दिस, 2x and 3x raised to power 0 we may or may not write, so this is 3. Again in this case 2 operators, so we have 3 terms, 9x²
plus 5x, and this is minus 16 by 5. Same way here we have two terms, 8x raised to power 4 and minus root 2x. Here it is 19 by 3, just one term. Root 7, again one term. We can further take another example. Say we have 7 by 6 and let's take the variable x. Again it is just one term. Clear? Now we do classification of polynomials in some more detail. First classification on the basis of number of terms. अब number of terms अगर 1 है तो हम इसको कहते हैं मोनोमियल. Let's take example. 7x हो गया, 9 by 3x हो गया, या सिंपल कोई भी नंबर है 16 by 5. This we have seen earlier. This is variable is not there, but I can always write it as x raised to power 0. So all these are monomials. This is further जिसमें कोई अगर वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट भी कह देते हैं. Now, if the number of terms is 2, we call it binomial. Example, 2x plus 3. इसमें दो terms हैं 2x and 3. 7 by 2x minus 5. इसमें दो terms हैं 7 by 2x और minus 5. यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं. 7x एक अलग एग्जाम्पल है, एक अलग मोनोमियल है. 9 by 3x अलग मोनोमियल है. 16 by 5 अलग मोनोमियल है. ये तीन डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. देयर इज नो ऑपरेटर, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन द टू. यहाँ पर हमारे पास प्लस साइन है, सो एक एग्जाम्पल बाइनोमियल का ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है. इफ देयर आर 3 टर्म्स देन वी कॉल इट ट्राइनोमियल. लेट्स टेक एग्जाम्पल, 2x square minus 3x plus 7. Further I can take root 7x cube minus 7x plus 5. So all these are examples of trinomials. 3 से ज्यादा अगर होते हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल्स बोल देते हैं. We call it polynomial. Or sometimes it is also referred as multinomial. Now, on the basis of degree of polynomial, डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व होती है. लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल 7x raised to power 5 minus 6x cube. इसमें पावर क्या है? 5 है, 3 है, बट हाईएस्ट पावर क्या है? 5. सो इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 5. If I take another example, root 2x minus 7x raised to power 8 plus 10x, इसमें पावर क्या हो गई? हाईएस्ट पावर इज 8, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, सो वी कैन कंबाइन दीज टू टर्म्स ऑल्सो. सो पावर 8 है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री हो गई 8. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 2x minus 3. यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यानी कि पावर क्या है? 0. So the degree is highest power 1. So on the basis of degree also we can classify the polynomials. Let's consider different cases. If suppose the degree is 1, we call it linear polynomial. क्योंकि डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर हमारी 1 हो सकती है, यानी कि we can have just at most x raised to power 1, x square, x cube, x raised to power 4 इसमें नहीं आएगा. लाइक एग्जाम्पल 2x minus 3 है. सिंपल 7x भी ले सकते हो आप. x की पावर 1 होनी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल x only. You can have different variable, like you can have 9y also. This is the polynomial in y. If you take 7z, this is the polynomial in z. But linear polynomial के लिए वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए. If the degree is 2, then we call it quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. सो लेट्स टेक द एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 5. जरूरी नहीं है हमारे पास x की टर्म है या कांस्टेंट टर्म है. अगर मेरे पास सिर्फ x की पावर 2 है, लेट्स टेक 9x स्क्वायर. दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ आई हैव माइनस 5 प्लस 7x स्क्वायर, दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ आई टेक x स्क्वायर माइनस 2x,
दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2 है. इफ इट इज 3 देन वी कॉल इट क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल 7x क्यूब minus 3x square plus 5x plus 9. Further I can say, let's take another example, x cube minus 9 है सिर्फ, या फिर minus 10 by 3 plus x cube है. So all these are examples of cubic polynomials. If we take degree 4, that is by quadratic and further. So in 10th class we'll adhere mainly to quadratic polynomials that we are going to study further. Now there are certain more terms which are related to a polynomial. First thing, when we are talking about polynomial in x, usually we denote it by small p with variable involved in the brackets. Like px is a variable in x. So let's take the simple variable, say 2x minus 3. If I want to take variable in y, so I can write this as p of y is equal to 7y square say. So वेरिएबल हम ब्रैकेट में लिखते हैं एंड p डिनोट्स द पॉलिनोमियल. सो नेक्स्ट टर्म वी आर डीलिंग विद इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल दिस पॉलिनोमियल px इज 2x minus 3. अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूं तो px क्या हो जाएगा. This x will be replaced by 1, so we get 2 into 1 minus 3, which is equal to 2 minus 3, which is equal to minus 1. So value of this polynomial at x is equal to 1 is minus 1. Let's take another example here. If I take y as 2, so p of y means p of 2 in this case will be equal to 7. In this case y is 2, so this y will be replaced by 2. The power will remain as it is. This means multiplication, so 7 into 4 we get 28. So in this case value of the polynomial py at y is equal to 2 is 28. So this is value of a polynomial. Now let's take another very important term which is related to it, which is zero of a polynomial. Now let's take an example. Say px is equal to x minus 2. If I consider values of this polynomial at different values of x, if I take x is equal to say 1, p of 1 will be equal to 1 minus 2, जैसे कि हमने अभी किया 1 minus 2 is minus 1. So if I take x is equal to 0, I get p of 0 is equal to 0 minus 2, which is equal to minus 2. Now if I take x is equal to 2, p of 2 is what? 2 minus 2 is equal to 0. So the value of the variable which makes the polynomial 0 is known as zero of the polynomial. So in this case x is equal to 2 is 0 of the polynomial. Here we are talking about x minus 2. Let's take another example. Let's take x square minus 9. Okay, now in this case if I put different values of x, like if I put x is equal to, I'm doing it directly here, I hope by now it's clear to you. If we put different values of x, we get different values of px. So here I am writing the values of x, here I am writing the value of p of x. If I take x as 0, 0 minus 9 is minus 9 itself. If I take x as 1, 1 minus 9 is minus 8. If I take x as 2, so this gives you 2 square is 4, 4 minus 9 is minus 5. If I take x as 3, 3 square is 9, 9 minus 9 is 0. So all these are values of the polynomial at these values. But 0 हमारा polynomial में कब आ रहा है? Value 0 we are getting when x is equal to 3. So in this case x is equal to 3 is a 0 of this polynomial. Let's take few more values. अगर मैं यहाँ पर -2 लेती हूँ
Minus 2 square is again 4. 4 minus 9 is minus 5. If I take minus 3, minus 3 का square कितना हो गया 9. Again 9 minus 9 is 0. Here again I am getting the value 0. So again minus 3 is also a 0 of this polynomial. So we can say x is equal to minus 3 is a 0 of this polynomial. As we have seen, x square minus 9 has two zeros, 3 and minus 3. ये कौन सा polynomial है हमारा? Quadratic polynomial because the degree is 2. So when the degree is 2, at most it can have two zeros. In this case, the degree is 1 because highest power of x is 1. So we get only 1 0 in this case. Now let's see geometrical interpretation of these zeros. ये जो अभी हमने zeros निकाले हैं polynomials के, like linear polynomial x is equal to px is equal to x minus 2 का 0 आया था हमारा, x is equal to 2. और इधर हमने quadratic polynomial लिया था x square minus 9, उसका हमारे दो zeros आए थे 3 and minus 3. इनका actual मतलब क्या है? Geometrically let's see. Now if I take x points on x axis and the values of px on y axis, I get the point 1 minus 1, which is this. Second point is 0 minus 2, x is 0, y is minus 2 is here. Third is x is 2, y is 0, x is 2, y is 0 is this. Now if I join these points, what I get is graph of this polynomial px is equal to x minus 2. अब ये ग्राफ यानी कि ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां पर टच कर रही है? ये पॉइंट है ये वाला. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर 2, 0 और इसका एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट क्या है 2, विच इज सेम एज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कौन सा होता है? एब्सिसा होता है या x कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का जहां पर इस पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है. So here just by the graph we can find out 0 of the polynomial also. So here it is touching at 2, 0. So 2 is 0 of this polynomial. Same way let's see the quadratic polynomial px is equal to x square minus 9. All these points I have marked on this graph. If I join these points, in this case it's not a line but it will be a curve like this. So this is curve for the polynomial px. अब ये x एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है? दो पॉइंट्स पर. कौन से पॉइंट्स है? एक पॉइंट ये है हमारा -3, 0 और दूसरा पॉइंट है 3, 0. अब इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -3 and 3 which are same as zeros of this polynomial. So अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है किसी भी पॉलिनोमियल का तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी जीरोस कौन सी हैं. सो जीरोस आर गिवन बाय द एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस. फर्दर जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल को प्लॉट कर रहे हैं हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आएगा यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आएगी. और जब हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वगैरह प्लॉट कर रहे हैं हमारे पास डिफरेंट शेप्स आएंगी. फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज पैराबोला. We can have different cases for this. This is one such case. Like parabola can be in this direction also. It can be like this also. So we can have different directions for this. Now let's take some more examples to find out number of zeros using the graph itself. I hope linear is clear to all of you. If I take the graph like this, so if this is graph of the polynomial px, this is intersecting x axis at 1, 2, 3 and 4 points. So the number of zeros it can have is 4 zeros will be there for this polynomial. Let's take another example. If the graph is like this, so it is touching the x-axis at 1, 2, 3, 4 and 5 points. So in this case
5 zeros will be there for the polynomial. If the graph is not intersecting x-axis at all, it's like this, it's going like this way, it is not touching x-axis at all, in that case it does not have any real zero. So in this case no zeros are there. For parabola we have discussed this case when it is touching the x-axis at 2 points. We may have a case like this when it is touching x-axis at just 1 point. So in this case it has 1 zero only. So these are the different cases we can have when a polynomial. We are discussing how to find out its number of zeros using the geometrical representation. Now let's take some more recap of the previous things we have already done. One of them most important part is factorization of a quadratic polynomial by splitting the middle term. Okay, quadratic polynomial, as we have already done, this is of the form ax square plus bx plus c, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x, and c is the constant term. Let's take for an example, we have x square minus 5x plus 6. In this case, a is 1, b is with sign, we have to consider minus 5, and c is equal to 6. Okay. Now for splitting the middle term, इसमें हमें क्या करना होता है, जो मिडिल वाली टर्म होती है यानी कि x वाली जो टर्म होती है उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तो ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें, यानी कि इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स की फॉर्म में हम लिख सकें. उसके लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले तो चेक करो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है. नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट. सो फर्स्ट स्टेप, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर a है 1 और c है 6. फाइंड द प्रोडक्ट. आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स ओनली. a into c, in this case a into c in our case is equal to 1 into 6. Now most important thing, check the sign for the constant term. Constant term, the sign is plus. It means our next step, which is based on this, third step is you have to find product of you have to find factors of this product. Suppose ये आया हमारा d. अब d के हमें दो फैक्टर्स ऐसे फाइंड करने हैं, से e और f, जिनको अगर ये प्लस है तो ऐड करके हमारी ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, अगर ये माइनस है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -5 आना चाहिए. लेट्स टेक एग्जांपल. हमारा प्रोडक्ट आया यहाँ पे 6. अब 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? आई कैन राइट दिस एज 1 into 6, 1 into 6, 6 into 1, सेम थिंग. आई कैन राइट दिस एज 2 into 3 ऑल्सो. ठीक है. नाउ अब इसमें से हमें ऐड करके हमें क्या लाना है? 5 लाना है. इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइन, लेट्स कंसिडर ओनली द नंबर हियर. हमें 5 लाना है. अब कौन से दो फैक्टर्स को ऐड करके हम 5 ला सकते हैं? 1 plus 6 is 7, 2 plus 3 is 5. सो हम ये वाला पेयर कंसिडर करेंगे. सो 5 आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर, माइनस में बाहर ही लिख रही हूँ. 5 को हमने लिख दिया 2 plus 3 की फॉर्म में, x plus 6. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 को सिर्फ 2 plus 3 की फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद ओपन दिस ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, 2 into x 2x, माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 6. अब इन दोनों में से x कॉमन है, बचा क्या? x माइनस 2. इन दोनों में से 3 कॉमन है, साथ में माइनस साइन भी हम कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज हमारी कोशिश क्या रहेगी, यहाँ पर भी सेम फैक्टर कॉमन आ जाए जो यहाँ पर है. तो यहाँ आ गया x, हमने माइनस साइन कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, -2.
जब भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ये जो हमारा पेयर आता है इसमें हमारा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, तभी हमारा ये मेथड करेक्ट है। अगर यहाँ पर सपोज x माइनस 2 आ रहा है या x प्लस 2 आ रहा है, इट मीन्स आपने इस स्टेप पे कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। सो जस्ट गो बैक टू द स्टेप एंड चेक इट। ओके, नाउ इन दोनों टर्म्स में से ये x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा माइनस 3। सो अगर हमारा ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज रिटन एज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो ये दो लीनियर फैक्टर्स हो गए हमारे इस वाले पॉलिनोमियल के, और वी कैन फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। लेट्स सी अनदर पॉलिनोमियल। यहाँ पर हमारे पास प्लस था, अगर यहाँ पर माइनस होता, लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब फर्स्ट स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, सेकेंड स्टेप हमें a और c का प्रोडक्ट निकालना है। सो 1 इंटू 6 इज 6 इटसेल्फ। अब हमें 6 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, फिर से लाना क्या है 5, बट इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करके 5 लाना है। जस्ट सी दिस साइन, माइनस है यानी कि दो फैक्टर्स जो हमें 6 के लेने हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके हमें 5 लाना है। अब 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 3। अब 2 और 3 का डिफरेंस क्या है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पर 6 और 1 का डिफरेंस क्या है 5। तो अब इस बार हम ये वाला पेयर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगेन माइनस 5 लाना है, तो बड़ा वाला जो फैक्टर है उसमें ये वाला साइन होना चाहिए, छोटे वाले फैक्टर को हम दूसरा वाला साइन देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। So minus 5 can be written as minus 6x plus x minus 6. So minus यहाँ पर देखो minus 6x plus x क्या होगा minus 5. So इस minus 5 को हमने इन दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया. That's why this method is known as splitting the middle term. यहाँ पर भी हमने 5x को स्प्लिट किया था as minus 2x and minus 3x. So I hope this step is clear. So once you get this step, then x is common from here, x minus 6 is left, यहाँ पर plus 1 is common, x minus 6 is left. Again see here, हमारे पास ये same factor आ गया, so x minus 6 common, x plus 1 is left. I hope these two examples are clear. Let's take some other example. अभी तक हमने जो example लिए थे उनमें a1 था. Let's take some more example जिसमें ये a1 नहीं है. Now let's take another example. अब इसमें देखो x स्क्वायर वाली टर्म ये है, x वाली टर्म ये है और कांस्टेंट टर्म ये है. फर्स्ट स्टेप क्या है, इट शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मींस इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x. तो पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि 4x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म माइनस 13x माइनस 12. सो a इन दिस केस इज 4, c इज 12. सो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका 4 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 48. अब हमें 48 के फैक्टर्स निकालने हैं जिससे कि माइनस साइन शोज यू डिफरेंस उन दोनों का कितना होना चाहिए 13. सो 48, if you can find out the factors directly, that's very good. अगर नहीं आता है, let's go for prime factorization. So this goes by 2, we get 24. 2s are 12. 2s are again we get 6. 2s are we get 3, 3 and 1. Okay. Now let's check the pairs. 48 can be written as 2 into the product of these numbers, which is equal to 2 into 2 into 2, 8, 8 into 3, 24. So 48, I can write this as 2 into 24. I can combine these two factors. So it is 4 into 12. I can combine these three factors, that is 8 into 6. I can combine even this, so we get 16 into 3. Further, I can take all of them, so it can be written as 48 into 1. So this is the way to find out the pairs whose product gives you 48. Now what is the condition? What we need is two numbers whose minus sign shows difference is 13.
So which are those two numbers? 24 and 2. The difference is 22. 12 and 4. The difference is 8. 6 and 8. The difference is 2. 16 and 3. The difference is 13. So this is the required pair. Clear? और हमने क्या किया था, जो बड़ा वाला नंबर है यानी कि 16, उसको हम ये वाला साइन देंगे जो हमें चाहिए. सो दिस कैन बी रिटन एज 4x स्क्वायर माइनस 16x. डिफरेंस चाहिए क्योंकि तो दोनों का साइन अलग होगा. सो प्लस 3x minus 12. So this is the most important step. After that the steps are same. Common from these 4 and x. What is left? X minus 4. Common from this is 3. X minus 4 is left. As you can see, we are getting x minus 4 in both the pairs. So we take x minus 4 common. What is left is 4x plus 3. So this is the factorization for this given polynomial. Okay. Now let's see. यहाँ पर माइनस था, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो क्या होगा? 4x square plus 12x minus 13. Sorry, it's minus 13x minus 12. So this was the polynomial. Now for this polynomial, 4 into 12, 48. So these are the factors of 48. अब इस केस में हमें कौन सा लेना है? जिनका डिफरेंस क्या आएगा? 13, which we have already seen 16 into 3. बट इस बार हमें क्या देना है? पॉजिटिव साइन देना है बड़े वाले नंबर को, यानी कि 16 को हम देंगे पॉजिटिव साइन और दूसरे वाले नंबर को हम देंगे नेगेटिव साइन, बिकॉज हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं दोनों नंबर्स का. सो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 16x minus 3x minus 12. So in this case 4x is common, x plus 4 is left, 3 is common, minus sign is also common, so minus 3 taken common, x plus 4 is left. Here again you can see x plus 4 is the common factor here. So x plus 4 taken common, 4x minus 3 is left. So this is prime factorization for this number. Can you see the difference between the factors? अगर हमने सिर्फ एक साइन चेंज किया है, यहाँ माइनस था तो फैक्टर्स ये आए, यहाँ प्लस है तो फैक्टर्स ये आए. सो you need to take care of the sign. So this is very important to check the sign while splitting the middle term. So I hope this factorization of quadratic polynomials is clear to you. How to factorize a quadratic polynomial into the factors by splitting the middle term. Splitting the middle term as this term is split into two parts. Here also this term is split into two parts to factorize it. Now let's take one more method to split the middle term, which can be done directly. इसमें हम क्या करते हैं? Method same है. First of all, it should be in standard form. Standard form means the decreasing power of x. यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ power 0 है. So this one is in standard form. उसके बाद हम क्या करते हैं? x square का coefficient और constant term को multiply करते हैं. यहाँ हो गया 1 into 10 is equal to 10 with sign. ठीक है. अब हमें 10 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और उन फैक्टर्स से हमें क्या लाना है? +7. +7 कब आएगा? जब 10 के फैक्टर्स क्या ले सकते हैं हम? 10 के फैक्टर्स 10 आई कैन राइट दिस एज 1 into 10 और आई कैन राइट एज 2 into 5. अब किन दो फैक्टर्स का सम हमारा 7 है? 2 + 5 is 7, 1 + 10 is 11. So I cannot take this. So I have to take these two factors. तो अब हम +7 को कैसे स्प्लिट करेंगे? +2 and +5. फर्दर हम इस पूरी टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर, 7x को हम लिख सकते हैं +2x प्लस 5x प्लस 10. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सो इसमें हमने दो चीजें यूज की. फर्स्ट a और c का प्रोडक्ट फाइंड किया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसके हमने फैक्टर्स निकाले हैं और उनमें से वो पेयर लेंगे जिससे कि हमें +7 मिल रहा है. सो आफ्टर स्प्लिटिंग इट, लेट्स टेक फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म. इन दोनों में से कॉमन क्या है? x. लेफ्ट इज x + 2. इन दोनों में से 5 कॉमन है. x + 2 इज लेफ्ट. नाउ x + 2 is common in these two terms. So we take x + 2 common. What is left is x + 5.
So this is prime factorization for this quadratic polynomial. Okay, let me explain one thing. यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 2x plus 5x लिखा था. इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 लिखते हैं, यानी कि पहले 5x लिखते हैं बाद में 2x लिखे हैं, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. लेट्स सी हाउ. अब यहाँ पर कॉमन क्या है, x. व्हाट इज लेफ्ट इज x प्लस 5. कॉमन इन दीज टू इज 2. x plus 5 is left. Now x plus 5 is common in these two, so we take x plus 5 and what is left is x plus 2. As you can see, these two are the same answers. So जब हम split कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी factor हम कोई भी term हम पहले लिख सकते हैं, 2x plus 5x या फिर 5x plus 2x. इसमें हमने क्या किया, a और c का प्रोडक्ट फाइंड किया और उस जो प्रोडक्ट आया उसको हमने वो वाले फैक्टर्स लिए जिनका सम भी आ रहा है. So this method is derived from the identity that you have already done. X is plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab. अब इसमें कंपेयर करो, a b यानी कि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है और a प्लस b मिडिल टर्म जो होगी वो सम होगी और यहाँ इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है. तब हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. एक्चुअली हम क्या करें, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद दिस इज इक्वल टू दिस. यहां पर भी आप देख सकते हो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन था, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा. अब a क्या है यहाँ पर 5, b क्या है यहाँ पर 2. सो फैक्टर्स आ गए x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, दैट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस b. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 10. अब इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करें, प्रोडक्ट ए बी हमें लाना है -10 और उनका सम क्या होना चाहिए 9. तो हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं ए और बी जिनका प्रोडक्ट -10 होना चाहिए और सम होना चाहिए +9. लेट्स फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ -10. -10 के फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, 10 के अगर हम फैक्टर्स देखें, दो फैक्टर्स होते हैं. 10 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू 5. बट क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो दोनों में से एक ही फैक्टर नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या होता है माइनस प्लस माइनस होता है या प्लस माइनस माइनस होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 10 या फिर 1 इंटू -10. इसी तरह से इसको भी हम लिख सकते हैं -2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू -5. सो ये चार पेयर्स हो गए हमारे पास -10 के फैक्टर्स के. अब इन पेयर्स में से हमें वो वाला पेयर ढूंढना है जिनका सम हमारे पास 9 आए. नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड. -1 plus 10 is +9. So this is the required pair. Let's take other pairs also. 1 minus 10 कितना होगा, -9 होगा ये. -2 plus 5 is 3. 2 minus 5 is -3. इनमें से हमारा रिक्वायर्ड पेयर कौन सा है, +9. तो मिडिल टर्म को हम लिखेंगे -1 plus 10 की फॉर्म में, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 10x माइनस 10. अगेन x कॉमन, x माइनस 1 इज लेफ्ट. यहाँ पर 10 कॉमन, x माइनस 1 इज लेफ्ट. अब इन दोनों में x माइनस 1 कॉमन है, what is left is x plus 10. So this is factorization for the polynomial x square plus 9x minus 10. अब इसी में अगर हमारे पास होता, let's take another example for this, x square minus 9x minus 10. तब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट -10 चाहिए और सम क्या चाहिए -9. ये हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे. अब इसके लिए हम कौन सा पेयर लेंगे जो हमें -9 दे रहा है, यानी कि ये वाला पेयर. इट मीन्स वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10x माइनस 10. As you can see, +1 minus 10 is -9. Now x common from this, x plus 1 is left. -10 common, x plus 1 is left. X plus 1 common, so this gives you x plus 1 into x minus 10. Clear? Now let's take this one more example.
4x square minus 12 minus 13x. Is this in standard form? फर्स्ट टर्म हमारी एक्स स्क्वायर की है, सेकेंड कांस्टेंट टर्म है, थर्ड है हमारी एक्स की टर्म. सो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. 4x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12. अब हमें क्या करना है, यहां पर कॉफिशिएंट अगर 1 था तो सिर्फ हम कांस्टेंट टर्म देख लेते थे. अब यहां पर अगर कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कुछ, तो हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है 4 और कांस्टेंट टर्म का. सो 4 इंटू माइनस 12 गिव्स यू माइनस 48. अब हमें जो फैक्टर्स निकालने हैं वो हमें निकालने हैं माइनस 48 के, जिससे कि सम हमारे पास आए माइनस 13. सो माइनस 48 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 48 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 48 फर्स्ट. 48 कैन बी रिटन एज 1 into 48. It can be written as 2 into 24. It can be written as 3 into 16. Can we write it in some other way? Yes, it can be written as 4 into 12. Okay. अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए. या तो वो होगा -1 into 48 या फिर 1 into -48. या तो वो होगा -2 into 24 या फिर 2 into -24. यहाँ पर होगा -3 into 16 या फिर 3 into -16. यहाँ पर -4 into 12 या फिर 4 into -12. अब हमें कौन सा पेयर लेना है जिनका सम आए -13. नाउ लेट्स चेक द सम ऑफ दीज फैक्टर्स. -1 plus 48 is 47. 1 minus 48 is -47. -2 plus 24 is 22. 2 minus 24 is -22. -3 plus 16 gives you 13. 3 minus 16 gives you -13. -4 plus 12 gives you 8. And 4 minus 12 gives you -8. अब इनमें से हमें कौन सा पेयर चाहिए जो हमें सम देता है -13. -13 सम हमारा आ रहा है इन दोनों फैक्टर से 3 and -16. So this -13 I am going to write as 3 minus 16. क्योंकि x है यहाँ पर तो हम दोनों फैक्टर्स के साथ x लगाएंगे. सो इट बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16x माइनस 12. और इन दोनों फैक्टर्स में से हम कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी हम बाद में लिख सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस ओनली x इज कॉमन. 4x प्लस 3 इज लेफ्ट. यहाँ पर माइनस साइन कॉमन है और उसके साथ में 16 and 12 4 कॉमन फैक्टर है. यहाँ पर बचा 4x. अब क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये वाला साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस. 12 में से 4 कॉमन ले लिया, 3 इज लेफ्ट. नाउ 4x plus 3 is common. We are left with x minus 4. So this polynomial has been reduced in the factorized form in this. So 4x square minus 12 minus 13x can be written as product of 4x plus 3 and x minus 4. So this is simple factorization of this polynomial. So I hope factorization of quadratic polynomial by splitting the middle term is clear to all of you. Now we have done two methods. हमने दो methods किए splitting the middle term के. इनमें से आपको जो भी method easy लगे वो आप follow कर सकते हो. So जो जो conditions बताएंगे बस उनका आपको ध्यान रखना है. और ये जो इतना लंबा process किया है, once you are in the habit of doing this, you can orally do this without even writing it. So practice is required for this method. That's it. Now let's see how to find zeros of a quadratic polynomial. अभी हमने किया था factorization of a quadratic polynomial by splitting the middle term. वही मेथड यूज करके हम इसके जीरोस निकालेंगे. Now फर्स्ट एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है तो इसमें प्रोडक्ट हो जाएगा 6 into 1 6. 6 के फैक्टर्स हमें लेने हैं जिनका डिफरेंस आए 1. सो दीज आर 3 and 2. सो वी टेक x स्क्वायर
minus 3x plus 2x minus 6. Then x common from these two, x minus 3 आ गया, 2 कॉमन लिया यहां से, x minus 3 आ गया. Now x minus 3 common, x plus 2 is left. Clear? Now अगर हम इस पॉलिनोमियल को px लेते हैं, इसके जीरोस फाइंड करने के लिए, यानी कि हमें x की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जब px की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट px इज इक्वल टू 0. अब अगर ये px 0 है, यानी कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 0 है या x प्लस 2 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. So x is equal to 3 and minus 2 are zeros of this given polynomial px. So this is first example. Let's see the second one. 6x square minus 3 minus 7x. अब इसमें क्या है, x square वाली टर्म पहले है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर x वाली टर्म है. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x की फॉर्म में. पहले x स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x वाली टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी. सो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. नाउ फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 इंटू 6 18 के फैक्टर्स हमें वो चाहिए जिनका डिफरेंस 7 आए, और वो है 9 एंड 2. सो वी गेट 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3. 3x common from these two, 2x minus 3 is left. यहाँ पर 2x minus 3 already है, तो हम 1 common ले लेंगे. 2x minus 3 is left. Now 2x minus 3 common, 3x plus 1 is left. Now this is px. If we put each factor equal to 0 to get the value, to get the zeros of this polynomial, 2x minus 3 is equal to 0 और 3x plus 1 is equal to 0. यहां से आएगा हमारे पास x is equal to 3/2, यहां से आएगा x is equal to minus 1/3. सो यहां पर दो जीरोस आ गई हमारी, 3/2 एंड minus 1/3. नाउ लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल. इसमें क्या है, √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3. स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, सेकेंड x है, थर्ड कॉन्स्टेंट है. नाउ इसमें √3 है बट मेथड सेम रहेगा हमारा. पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, √3 इंटू 4√3, दैट इज √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, यानी कि हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनका सम हमारे पास आएगा 8, एंड दोज टू फैक्टर्स आर 6 एंड 2. सो वी कैन राइट दिस एज √3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3. अब इन दोनों में से x कॉमन है और √3 लेट्स ट्राई. √3x स्क्वायर, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3. फर्दर 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 इंटू √3 एंड x एज इट इज माइनस 2x प्लस 4√3. यहाँ पर हमने 6 को लिखा है 2 इंटू 3 को फर्दर हमने ब्रेक किया है √3 इंटू √3, ताकि देखो यहाँ पर √3 है और x है, यहाँ पर हम √3x कॉमन ले सके, इसलिए हमने इसको फर्दर ब्रेक किया. अब यहाँ पर √3x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर √3x हमने कॉमन ले लिया, माइनस 2√3 बच गया. अब यहाँ पर अगर मैं -2 कॉमन लेती हूँ, x इज लेफ्ट हियर, माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2√3 बचा. नाउ x माइनस 2√3 इज कॉमन, और यहां पर बच गया √3x minus 2. So these are the two factors of this polynomial. So if I want to find out the zeros, let's put each factor to 0, and √3x minus 2 is equal to 0. यहां से आएगा 2√3 और यहां से आएगा x is equal to 2/√3. अब जब भी हमारा डिनोमिनेटर जो है इररेशनल होता है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारा आ जाता है 2√3/3. यूजुअली वी गिव आंसर इन द रैशनलाइज्ड फॉर्म. सो इन दिस केस द जीरोस आर 2√3 and 2√3/3.
नाउ अभी हमने देखा जीरोस कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल के. नाउ इनका रिवर्स देखते हैं. जैसे सपोज ये दो जीरोस है, अगर मैं फर्स्ट वाले को एज्यूम कर लूं अल्फा, सेकेंड वाले को एज्यूम कर लूं बीटा. सो अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया यहाँ पे -2. और अगर मैं इनका सम फाइंड करती हूँ, सम ऑफ दीज टू विल बी अल्फा प्लस बीटा. सो दिस इज 3 प्लस -2 विच इज इक्वल टू 1. और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा विच इज 3 इंटू -2 विच गिव्स यू -6. अब अगर हम इनको कंपेयर करें इसके कॉफिशिएंट से, यहाँ पर a हमारा है x² का कॉफिशिएंट 1, b है x का कॉफिशिएंट यानी कि -1, c है कांस्टेंट टर्म यानी कि -6. इसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी कि ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म से. तो इनको अगर हम देखें -b अपॉन a कितना होगा यहाँ पे, -1 अपॉन a इज 1 विच इज इक्वल टू 1. एंड c अपॉन a अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा -6 अपॉन a इज 1 विच इज इक्वल टू -6. नाउ सी द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस. ये हमारे जीरोस का सम आया था 1 और -b/a भी 1 है. सो यानी कि अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है हमारा -6 और यहाँ पर c/a भी -6 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a. So this gives you important relationship between the zeros of this polynomial alpha beta and the coefficients, which says sum of zeros, that is alpha plus beta, is equal to -b/a, and product of zeros, that is alpha beta, is equal to c upon a. So next we'll see how to verify this. We have done one verification here. Same way we can verify for this example as well as for this example. Now let's recall the relationship between zeros of a polynomial and the coefficients. Linear polynomial is given by ax plus b. अगर हम इसको 0 के इक्वल करें तो x आ जाएगा -b अपॉन a, यानी कि लीनियर है a की 0 होगा एंड दैट इज गिवन बाय -b अपॉन a. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने किया, इसमें दो जीरोस होंगे. अगर हम उनको डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से तो उनका सम हो जाएगा हमारा -b अपॉन a, यानी कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा c अपॉन a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x². Now for cubic polynomial, the standard form is ax cube plus bx² plus cx plus d. क्यूबिक है, डिग्री 3 है, तो एटमोस्ट इसमें 3 जीरोस होंगी. अगर हम उनको डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से तो इन तीनों का सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज गिवन बाय नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज -b अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x³ a. और अगर इन तीनों जीरोस में से हम दो को लेके उनका प्रोडक्ट फाइंड करें, यानी कि अल्फा बीटा को लिया पहले, फिर बीटा अल्फा को लिया, बीटा गामा को लिया, और फिर अल्फा गामा को लिया, और इन तीनों का अगर हम सम फाइंड करें दैट विल बी इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x c अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x³ a. And if we find product of these three, alpha, beta and gamma will be equal to constant term का negative -d upon
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए। अब इसमें ये ध्यान देना है, हम नेगेटिव साइन से स्टार्ट करते हैं। यहां से माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो जाएगा। नेक्स्ट सी अपॉन ए और अल्फा बीटा गामा हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। इसमें साइन चेंज हो रहा है, पहले वाला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। सिमिलर थिंग वाज देयर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने यहाँ पे लिया था माइनस बी अपॉन ए और ये आ गया था सी अपॉन ए। Now let's see how to find quadratic polynomial when sum and product of its zeros are given. Sum and product of zeros are given to you. उसमें से हमें quadratic polynomial निकालना है। Before we start with this, let's recall an identity that x plus a into x plus b क्या होता है, x square plus a plus b into x plus ab। और अगर प्लस a की जगह मैं माइनस a ले लूं और यहाँ प्लस b की जगह माइनस b ले लूं, तब हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको अगर मैं एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर लूं, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, यानी कि इसके जीरोस हो गए ए एंड बी। और इन्हीं ए और बी को जो हम अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं, अगर हम इनको अल्फा बीटा की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यानी कि ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज अल्फा बीटा। अब ये के हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है। अब इसके हम अगर जीरोस निकालते हैं तो हमारे पास फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 विच गिव्स यू x कॉमन x माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 फर्दर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इसके जीरोस आ जाते हैं हमारे पास 3 एंड माइनस 2। लेट्स टेक अल्फा एज 3 बीटा एज माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसके भी फैक्टर्स क्या होंगे, 2 हो जाएगा। फर्दर इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 3 एंड माइनस 2। सो अल्फा बीटा सेम रहेगा। आई कैन राइट दिस एज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। सो अगर कोई कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं तो भी हमारे जीरो सेम रहते हैं। इसीलिए ये हम कांस्टेंट के यूज करते हैं इन ऑर्डर टू शो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल नहीं है जिनकी जीरोस हमारी 3 और माइनस 2 हैं। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स which are having this 3 and minus 2 as their zeros, and hence the sum here is 1 and product is minus 6. So अगर हमें sum और product दिया हुआ है तो infinite number of polynomials ऐसे हो सकते हैं जिनका sum और product given है। Let's take example. अब sum हमें अगर हम दिया हुआ है, let's take sum of zeros is 3 and product is से 2, ठीक है। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट्स 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 2। सो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। इन दिस केस वी कैन एज्यूम k एज एनी वैल्यू। यूजुअली अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम 1 ले लेते हैं वैल्यू। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल which has sum as 3 and product as 2. Let's take another example. अगर हम sum लेते हैं 1/2 और product हमारा है से 1/3, so इस केस में हमारा polynomial हो जाएगा k into x square minus sum of products is 1/2 into x plus product of zeros is 1/3. अब इसमें हमारे डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं 2 and 3। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो इनका एलसीएम है 2 और 3 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो उसको हम k की वैल्यू ले लेते हैं। सो लेट्स टेक k एज 6।
अब k को अगर हम 6 ले लेते हैं और इधर एलसीएम ले लेते हैं, सो इट बिकम्स 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 6 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 is one of the polynomial which has sum as half and product as 1/3. Let's take some more examples based on the same concept. अभी हमें क्या दिया हुआ था, अभी हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ था. अगर सम और प्रोडक्ट की जगह हमें जीरोस दिए हुए हैं, then also we can use the same formula. Let's take an example. Let zeros of a polynomial are say 3 and 2. Find the zero or find the polynomial. So इस केस में अल्फा को हम ले लेते हैं 3 और बीटा को हम ले लेते हैं 2, जो कि हमारी दो जीरोस हैं. अब इस केस में हमारा सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, जो इन दोनों का सम होगा दैट इज 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा विच इज 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6. अब सम और प्रोडक्ट आ गए तो हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं टेकिंग k as 1. So we get x square minus sum of zeros is 5 into x plus product of zeros is 6. And k you can show here, taking k as 1, we get the polynomial x square minus 5x plus 6 is the polynomial which has zeros 3 and 2. Let's take another example. If zeros are given plus minus root 3. प्लस माइनस रूट 3 मतलब एक जीरो हमारा प्लस रूट 3 है और दूसरा जीरो हमारा माइनस रूट 3 है. इस केस में सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू 0. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 एंड माइनस प्लस इज माइनस, सो वी गेट माइनस 3. अब सम और प्रोडक्ट आ गए हमारे पास, तो पॉलिनोमियल आ जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 3. फर्दर 0x हम जरूरी नहीं है लिखना है, सो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं. सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 3. अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं 2 प्लस माइनस लेट्स से रूट 5, तो इस केस में अल्फा हमारा हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 और बीटा हमारा हो जाएगा 2 माइनस रूट 5. सो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा. इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 बिकम्स 4. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5. यहाँ पर डायरेक्टली हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं दैट a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर हमारे पास आ जाएगा, ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 1. अब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 1. सो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1. फर्दर वी कैन टेक k एज 1, so it becomes x square minus 4x minus 1 is the required polynomial. Let's take some problems based on zeros of a polynomial. Like first one, if one zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus p is 3, find the value of p. Also find its other zero. Now usually हम quadratic polynomial को px की फॉर्म में मार्क करते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी दिया हुआ है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए let's take the polynomial as qx, जो कि हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p.
अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। इसका मतलब क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल का एक 0 3 है, और 0 क्या होता है, x की वो वैल्यू जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं qx में, तो हमारे पास qx की वैल्यू क्या आएगी, 0। इट मीन्स सिंस 3 is a 0 of this polynomial, q of 3, x replaced by 3 gives you the value 0. It means 2 into 3 square minus 3 into 3 plus p is equal to 0, which gives you what? 9 into 2 is 18 minus 9 plus p is equal to 0. Further, it gives you p is equal to minus 9. So, this completes first part of the question, that is find the value of t. अब उसके बाद वो कह रहे हैं also find its other 0. अब other 0 के लिए let's complete this qx first. qx हमारे पास हो जाएगा 2x square minus 3x, p की वैल्यू आ गई -9, so this is -9. अब s के जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. फर्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, 9 and 2 is 18. अब हमें 18 के वो फैक्टर्स चाहिए जिनका डिफरेंस हमारे पास 3 आए, और वो फैक्टर्स है 6 and 3. सो दिस गिव्स यू 2x square minus 6x plus 3x minus 9. Now here we take 2x कॉमन, क्या बचा x minus 3, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे, x minus 3 बचा, अगेन x minus 3 कॉमन एंड 2x plus 3 is left. अब इन दोनों को अगर हम एक एक करके 0 करेंगे तो इससे आ जाएगा वैल्यू x is equal to 3 और x is equal to minus 3/2. तो एक 0 तो 3 ऑलरेडी दिया हुआ था, अदर 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज minus 3/2. So this completes this question. First part, the value of p is -9 and the other 0 is x is equal to minus 3/2. Now let's take the second problem. Second part में वो कह रहा है find the value of k such that the polynomial, now this is the polynomial given, let's take this as px or qx, anything. px is equal to x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product. अब हमें क्या दिया हुआ है, sum किसके इक्वल है, half of their product. So अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, let's recall, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax square plus bx plus c, और जीरोस ले रहे हैं अल्फा बीटा, तब इनका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास -b/a एंड अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास c/a, यानी कि सम हमारे पास हो जाएगा -b/a और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास c/a. सो इस पॉलिनोमियल का सम हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सो अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ जीरोस इन दिस केस इज माइनस माइनस becomes plus here. b is k plus 6 upon a is 1. So this is k plus 6 only. And product of zeros in this case is c/a, यानी कि 2 into 2k minus 1. Upon a is 1, so it remains same, 2 into 2k minus 1. अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, सम ऑफ इट्स जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो इसमें अगर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया हमारा k प्लस 6 और अल्फा बीटा आया है 2 इंटू 2k माइनस 1. तो इन दोनों को इक्वेट करके k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं. यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, k की टर्म्स उस साइड ले जाएंगे, ये इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6 plus 1 is equal to 2k minus k, which gives you k is equal to 7. So here we get the value of k as 7. Now let's see the third problem.
अब इस थर्ड प्रॉब्लम में क्या है, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x square plus 4x plus 1. Then find the polynomial whose zeros are. यहाँ पर दो पार्ट्स लिए हुए हैं क्वेश्चन के. फर्स्ट पार्ट कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ px. सेकेंड पार्ट कह रहा है ट्वाइस द जीरोस ऑफ px. सो अल्फा बीटा जीरोस दिए हुए हैं इसके. So when the polynomial is given to you, say 4x square plus 4x plus 1. इसमें अल्फा बीटा जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? We know it is minus b by a, so b here is 4, a is also 4, so this is minus 1, and product of zeros in this case is c by a, which is equal to 1 upon 4. Clear? Now अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि you have to find a quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of px. यानी कि जो हमें polynomial find करना है उसके जीरोस क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल. देयरफॉर जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर लेट्स टेक दिस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एज qx. रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा. और रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो बीटा क्या हो जाएगा? 1 बाय बीटा. अब 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हमारे जीरोस हो गए qx के, जो कि हमें फाइंड करना है. तो उनका सम क्या हो जाएगा? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. अल्फा बीटा एंड न्यूमरेटर बिकम्स बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज -1, और अल्फा बीटा है 1/4, सो ये हो जाएगा -4. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दिस केस इज, जीरोस ये दोनों है तो प्रोडक्ट हो जाएगा 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, यानी कि ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी 1/4 है तो ये हो गया 1 अपॉन 1/4 विच इज इक्वल टू 4. अब फॉर दिस पॉलिनोमियल qx, सम हमारा आ गया -4, प्रोडक्ट हमारा आ गया 4. So the polynomial, recall it, it's given by k into x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So in this case it is k into x square. Sum हमारा आया है इस केस में -4, so minus 4x plus product is 4. So further we get k into x square plus 4x plus 4, and if I take k as 1, I get the answer x square plus 4x plus 4 is the required polynomial which we have denoted here by qx. So this is our qx in this case. So I hope this example is clear to all of you. Now let's move to the second polynomial, second part of this question, where it says the zeros of qx, which is the required polynomial, is twice the zeros of this. So in this case यहाँ पर रेसिप्रोकल था तो जीरोस हो गए 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा. अब हम ट्वाइस कह रहे हैं तो इस केस में हमारे जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 बाय अल्फा एंड सॉरी ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ बीटा. So in this second part, zeros of the required polynomial qx are 2 alpha and 2 beta. So इस केस में सम क्या हो जाएगा? 2 alpha plus 2 beta, 2 common, so it becomes alpha plus beta. Alpha plus beta हमारे पास है -1, so this is 2 into -1 which is -2. Then product of the zeros is 2 alpha into 2 beta. 2 into 2 becomes 4. Alpha into beta I can write separately. Alpha into beta I know is 1/4, so this is 4 into 1/4, which gets cancelled and we get 1. So in this case our qx is equal to k into x square. Sum of zeros is -2 into x plus product of zeros is 1. And taking k as 1 we get x square, minus becomes plus 2x plus 1. So this is our required polynomial in this case. I hope these examples are clear to all of you.
Here we have taken twice of zeros of px. Same way you can be asked a polynomial whose zeros are thrice of the zeros of this. In that case we consider the zeros of the new polynomial are 3 alpha and 3 beta, and we proceed the same way. Let's study about division of polynomials now. Now, let's take the simplest case. We have to divide this polynomial by gx, which is 2x. Simplest because here we are taking just a monomial. So, we are taking division of a polynomial by a monomial. Now, before we proceed further, let's take simple example of numbers. If you have to divide, say, 17 by 5, what you do? 5 we write here, 17 we write here. It means 17 is what? Dividend. 5 is the divisor. Same way here, when we have to divide this polynomial by this gx here, 2x. Here 2x is the divisor. So we write this divisor here. Then dividend we write inside this bracket, which is 4x cube minus 3x square plus 5x माइनस 7. अब जब हम ये दोनों पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ध्यान देने की ये है कि ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x में ही हमें लेने हैं. यहाँ पर पावर 3 है, 2 है, 1 है, फिर 0 है. अगर ये हमें इस ऑर्डर में नहीं दिए तो पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे, फिर हम इस फॉर्म में लिखेंगे. राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं हम? 5 का वो मल्टीपल फाइंड करते हैं जो 17 से जस्ट छोटा है, और वो हमें पता है 5 into 3 gives you 15. ठीक है. उसी तरह से पॉलिनोमियल्स के लिए हम रूल क्या यूज करते हैं? जब हमें डिवाइड करना है तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को, यानी कि 4x क्यूब को हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर. यानी कि यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं 4x क्यूब को, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर इज 2x. इसको जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो दिस गेट्स कैंसल्ड बाय 2. x क्यूब अपॉन x गिव्स यू x स्क्वायर. सो यहां पर जो फर्स्ट टर्म हमारी आएगी वो हो जाएगी हमारी 2x स्क्वायर. अब जब हमने ये 3 लिख दिया यहां पर, तो उसके बाद हमने क्या किया? 5 into 3 15 we write here. सेम थिंग वी डू इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स. डिवाइजर को हम इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x स्क्वायर से, और क्या आएगा हमारे पास? 4x क्यूब, जो कि हम यहां लिख देंगे 4x क्यूब. ये ध्यान रखना है ये टर्म लिखते हुए कि x क्यूब के नीचे x क्यूब वाली टर्म आएगी, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x के नीचे x वाली टर्म. इट मीन्स लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखनी है हमें. अब ये 15 लिखने के बाद हम क्या करते हैं? इसको 17 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड वी गेट 2 हियर. सेम थिंग वी डू इन पॉलिनोमियल्स. ये हमने 4x क्यूब लिख दिया. अब इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसका साइन अभी पॉजिटिव है, साइन चेंज कर देते हैं और इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब गेट्स कैंसल्ड, वी गेट 0 हियर. अब हमारे पास बच गया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7. अब ये हमारा इस डिवीजन का एक स्टेप कंप्लीट हो गया. अब यही प्रोसेस हम रिपीट करते रहते हैं हर एक स्टेप के लिए. लाइक हमने क्या किया था? जो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ पर रिमाइंडर की, उसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ फॉर सेकेंड स्टेप अगेन वी प्रोसीड सेम वे. माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2x से. क्या आया हमारे पास? माइनस 3/2x. सो ये जो आया है हमारे पास, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड टर्म ऑफ द कोशिएंट. नाउ अब ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आएगा माइनस 3/2x इंटू 2x स्क्वायर 2x, विच बिकम्स माइनस 3x स्क्वायर. ये यही नंबर आएगा क्योंकि हमने इसी को डिवाइड करके
ये वाली टर्म निकाली थी. सो हमारे पास आ गया -3x². Then again we change sign and add these two gets cancelled. Now we are left with 5x minus 7. This completes our second step. अब थर्ड स्टेप के लिए फिर से हम सेम वे प्रोसीड करेंगे. इसकी फर्स्ट टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे. 5x डिवाइड बाय 2x, x gets cancelled, we are left with 5/2. यानी कि ये आ जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट. अब 5/2 into 2x क्या होगा? 2 gets cancelled, we get 5x. So here we get 5x. Again we subtracted by changing sign and adding, we are left with -7. Now क्या हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर x है. तो डिवीजन हमारा कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से इक्वल है या बड़ी है, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे. बट यहाँ पर डिग्री इसकी क्या हो गई? 0, और डिवाइजर की डिग्री है हमारी 1. So this 0 is less than 1, so our division stops here. अब इस केस में जैसे हमने यहाँ पर किया था, इसको हम डिवाइड करते रहे कब तक? जब तक हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं आ गया. ठीक. नाउ very important conclusion here. Using division algorithm, I can write this 17 as 5 into 3 plus 2. Same rule follows for the division of polynomials also. Gx is our 2x. Let's take this quotient as qx. In our case, this is equal to 2x square minus 3/2x plus 5x. And whatever is left over is the remainder. It's usually denoted by Rx, which is -7 in this case. So using the division algorithm for numbers, same thing holds for this also. That is, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. In terms of polynomials, these polynomials I can write this as px is equal to divisor is your gx, quotient is qx plus remainder is rx. Now you may be asked to verify this also. वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना है? डिविडेंड तो ऑलरेडी दिया हुआ है px, हमें राइट हैंड साइड को लेके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और r को ऐड करना है. फिर ये चेक करना है कि ये px के इक्वल है कि नहीं है. लेट्स टेक दिस. RHS हमारे पास क्या है? gx which is 2x in this case into quotient is this one, 2x square minus 3/2x plus 5/2 plus remainder which is -7 in this case. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x square, 2 gets cancelled, we get -4x cube, sorry. So here we get -3x square. Here 2 gets cancelled, we get plus 5x and plus -7. As you can see, this is equal to px, which is equal to LHS. Hence this division algorithm is verified for this particular example. One more important result. अब अगर इस केस में हमारा 2 रिमाइंडर है, यानी कि हम ये क्या कहते हैं कि 17 is not divisible by 5, और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कहते हैं कि 5 17 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है. अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम 15 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास क्या आता है? 5 into 3 is equal to 15 and the remainder is 0. जब रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये डिविडेंड का फैक्टर है. सेम थिंग इज ट्रू फॉर द पॉलिनोमियल्स ऑल्सो. अगर हमारे पास रिमाइंडर, यहाँ तो -7 है, अगर हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 आता तब हम कहते हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है. क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं है 0, तो इस केस में 2x is not a factor of this polynomial. We'll proceed further for the division of polynomials. Now let's take another example for division of polynomials. Here we have to divide -5x plus x raised to power 4 plus 6 by 2 minus x square.
तो इस केस में हमें डिविडेंड क्या है ये, और डिवाइजर क्या है ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी एक्स है हमारे पास यहाँ पर -5x प्लस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 6, और डिवाइजर है हमारे पास dx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ना ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर है x रेज टू पावर 4, तो पहले हम x रेज टू पावर 4 वाली टर्म लेंगे, फिर है हमारे पास 5x वाली टर्म, फिर है 6 वाली टर्म, और यहाँ पर क्या है हमारे पास हाईएस्ट पावर वाली टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म प्लस 2। अब इसमें ये देखो x रेज टू पावर 4 है, फिर x रेज टू पावर 1 है, फिर x रेज टू पावर 0 है, इसमें कुछ पावर्स मिसिंग है। नाउ डिवीजन जब भी हम करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ टर्म्स हमारी डिवाइड करने पर एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, तो उसको इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें x रेज टू पावर 4 जो टर्म्स मिसिंग हैं उनके साथ हम 0 कोफिशिएंट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इतना करने के बाद फिर हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। अब ये डिवाइजर है तो डिवाइजर को हम बाहर लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिविडेंड को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, विच इज x रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। क्लियर? नाउ जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेप, यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। दिस थिंग यू कैन डू इन द रफ वर्क ऑल्सो, यानी कि x रेज टू पावर 4 को हम माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बट क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सो नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसके बाद क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ लिखना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस वाले एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। अब इस वाले एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान क्या रखना है, x4 वाली टर्म x4 के नीचे आएगी, नेक्स्ट टर्म है हमारी माइनस 2x स्क्वायर, ये आएगी हमारी x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, सो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या किया था, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से, तो उसके लिए हम साइन चेंज कर, दिस गेट्स कैंसल्ड, अब बचा हमारे पास 0x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म 0x क्यूब है तो इसे लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से माइनस एक्स स्क्वायर से, तो आएगा हमारे पास माइनस 2, यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हो गया माइनस 2। अब माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4, दिस वी राइट हियर 2x स्क्वायर माइनस 4, देन वी सब्ट्रैक्ट, दिस गेट्स कैंसल्ड, माइनस 5x प्लस 10। अब इसकी डिग्री क्या है, दिस इज द रिमाइंडर, डिग्री ऑफ दिस इज 1 एंड डिग्री ऑफ दिस इज 2। जहां पर डिग्री ये कम हो जाती है वहां पर हमारा डिवीजन स्टॉप हो जाता है, उसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो हमारा ये आ गया हमारा रिमाइंडर Rx, ये आ गया हमारा क्वेश्चन Qx। क्लियर? Now let's take another example for division of polynomials. इसमें हमें डिवाइड करना है 2t रेज टू पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 को
टी स्क्वायर माइनस 3 से। अब चेक कर लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पावर 4 3 2 1 0 है और इसकी भी पावर 2 है फिर 0 है, यानी कि दोनों अरेंज्ड है, तो हमें अरेंज करने की इसमें जरूरत नहीं है। सो वी कैन स्टार्ट विद डिवीजन डायरेक्टली। यहाँ आ गया टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर आ गया 2 टी रेज टू पावर 4 प्लस 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। अब फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या है, 2 टी रेज टू पावर 4 को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, हमारे पास आ गया 2 टी स्क्वायर। सो 2 टी स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई के यहाँ लिखेंगे हम, वो हो गया 2 टी रेज टू पावर 4 माइनस 3 इंटू दिस इज माइनस 6 टी स्क्वायर, जो कि हम टी स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टी क्यूब माइनस 2 प्लस 6 इज प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप 3 टी क्यूब को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ गया 3t। सो ये हो गई सेकेंड टर्म, यहाँ पर 3t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 3t क्यूब माइनस 3 इंटू प्लस 3t हो गया हमारा माइनस प्लस माइनस 9t। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, बचा 4t स्क्वायर, दिस ऑल्सो गेट्स कैंसिल्ड माइनस 12। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 4 इज लेफ्ट, यानी कि नेक्स्ट टर्म यहां पर आ जाएगी 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा माइनस 12। अगेन वी सब्ट्रैक्ट, both gets cancelled in this case and we get remainder 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो सिंस रिमाइंडर इज 0 वी कैन से, अगर हम इसको gt ले रहे हैं और इस वाले पॉलिनोमियल को pt ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि gt इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल pt। अब क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है और रिमाइंडर 0 है, तो ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा pt का, यानी कि दिस इज अनदर फैक्टर ऑफ दिस pt। ये यानी कि ये डिवीजन हम किस लिए यूज कर सकते हैं, एक फैक्टर अगर हमें पता है दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। ये चीज हम यूज करेंगे जब हमें एक या दो जीरोस दिए होंगे इस पॉलिनोमियल के और रिमेनिंग जीरोस हमें फाइंड करने होंगे। दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल। Now let's come to the main question of polynomials, जो कि एग्जाम में मोस्टली आता है। अब इसमें क्या करना है आपको, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर 2 and -2। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले पॉलिनोमियल के सारे जीरोस निकालने हैं। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4। अब डिग्री 4 है तो जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 4। अब उन 4 में से 2 हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं 2 and -2, यानी कि बाकी के 2 जीरोस हमें निकालने हैं। तो उसके लिए अगर 2 और -2 जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो हमें पता है अगर 2 0 है तो x -2 एक फैक्टर होगा। सेम वे -2 अगर 0 है तो x -2 यानी कि x + 2 भी एक फैक्टर होगा। अब क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स हैं px के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। जैसे कि 3 मैं कह रही हूँ 6 का फैक्टर है और 2 भी एक फैक्टर है 6 का, तो 2 × 3 6 का फैक्टर हुआ। इसी तरह से पॉलिनोमियल में अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं px के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक px का फैक्टर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, दिस इज ऑफ द फॉर्म a - b × a + b,
जो कि हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका एक फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा फैक्टर, जिससे कि हम बाकी की जीरोस निकाल सकेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं नंबर्स का। अगर मैं कहती हूँ कि 5 10 का फैक्टर है और मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10 का अगर एक फैक्टर मुझे पता है तो उसको 5 से डिवाइड करके दूसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। सेम चीज हम पॉलिनोमियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल px का मुझे पता है एक फैक्टर ये है, तो दूसरा फैक्टर हम निकाल सकते हैं। कैसे? इस px को x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करके। सो लेट्स डू दैट। सो x स्क्वायर माइनस 4 से हम डिवाइड करेंगे px को, यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को, जो कि है x रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, आगे हमारे पास x स्क्वायर इंटू दिस इज x रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 इंटू दिस इज माइनस 4x स्क्वायर, जो हम लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे, subtracting, this gets cancelled, x cube minus 34 plus 4 is minus 30x square minus 4x plus 120 is left। अब फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इससे, आ गया हमारे पास x इंटू दिस इज x क्यूब माइनस 4 प्लस x इज माइनस 4x, अगेन वी सब्ट्रैक्ट, दिस गेट्स कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल्ड। अब बचा हमारे पास माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो आ गया हमारे पास माइनस 30। सो माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 30x स्क्वायर, माइनस 30 इंटू माइनस 4 इज प्लस 120, सब्ट्रैक्टिंग, बोथ गेट्स कैंसिल, यानी कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 है, यानी कि ये इसका फैक्टर है और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया ये। इसको हम मार्क कर लेते हैं QX से, यानी कि कोशेंट और QX हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, यानी कि px का एक फैक्टर हमने पहले निकाला था x स्क्वायर माइनस 4, दूसरा फैक्टर हमारा ये आ गया। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जीरोस निकाल लेंगे। जीरोस निकालने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 30 के फैक्टर्स जो कि सब्ट्रैक्ट करके हमारे 1 देंगे, विच आर 6 एंड 5। सो वी गेट x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30, x कॉमन, x प्लस 6 माइनस 5 x प्लस 6, जिससे आ गया x प्लस 6 एंड x माइनस 5। अब जीरोस निकालने के लिए हम दोनों को जीरो को इक्वेट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास x इज माइनस 6 और 5, यानी कि दो जीरोस हमें दिए हुए थे 2 माइनस 2, बाकी के दो जीरोस आ गए माइनस 6 एंड 5। सो देयरफॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 माइनस 2, जो कि हमें दिए हुए थे, बाकी आ गए माइनस 6 and 5. So this is the basic logic in finding out the remaining zeros of a polynomial when few of its polynomials are given. यहाँ पे हमें दो जीरोस दिए होते हैं, हो सकता है एक ही जीरो दिया हो, एक ही जीरो अगर दिया हो तो उसी से हम एक ही फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे px को, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको हम फर्दर फैक्टराइज करके रिमेनिंग जीरोस निकालेंगे। Let's take few more examples based on this. Next example, obtain all zeros of the polynomial, जिसको हम assume कर लेते हैं px, if two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3. Following same method, ये दोनों अगर zeros हैं तो x minus root 5/3 और x minus minus root 5/3, यानी कि x plus root 5/3 factors हो गए px के, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा। हियर अप्लाइंग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आ गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 5/3 इज द फैक्टर ऑफ px। अब या तो हम इससे डिवाइड करें px को, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम लेके आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5/3।
अब इस डिनोमिनेटर वाले 3 को बाहर कर लेते हैं, तो 1/3 3x² - 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब ये पूरा फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है। हमें क्या चाहिए? मेन पॉलिनोमियल वाला पार्ट। तो अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए rather than multiplying by dividing by this, we will divide simply by 3x² - 5. So let's divide 3x² - 5 से हम डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, जो कि है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करके x² इंटू दिस इज 3x⁴ और माइनस 5x²। सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 6x³ प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। नेक्स्ट टर्म 6x³ को इससे डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास 2x इंटू दिस इज 6x³ प्लस माइनस 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 10x। अगेन सब्ट्रैक्टिंग, बोथ गेट्स कैंसिल्ड, हमारे पास बचा 3x² माइनस 5, ये जाएगा 1 से, सो आ गया हमारे पास 3x² माइनस 5 इंटू 1 इज माइनस 5। अगेन सब्ट्रैक्टिंग, बोथ गेट्स कैंसिल, सो द रिमाइंडर इज 0। यानी कि px का एक फैक्टर हमारा 3x² माइनस 5 था, दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x² प्लस 2x प्लस 1, इसको हम ले लेते हैं qx। सो qx आ गया हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। ये आया है हमारा px का फैक्टर। हमें निकालने क्या है? जीरोस। सो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालेंगे। सो फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म we can say x² plus x plus x plus 1, which gives you x into x plus 1 plus 1 into x plus 1 और x plus 1 into x plus 1। यहाँ से हमारे पास जीरोस आ जाएंगे -1 and -1। Therefore, all the zeros of px are -1 जो हमने निकाले और जो दो ऑलरेडी दिए हुए थे, √5/3 एंड -√5/3। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1। अब इसमें जीरोस दिए हुए हैं हमें 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। अब ये दो जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं, इस पॉलिनोमियल को हम एज इट इज px एज्यूम कर लेते हैं। ये दो जीरोस हमें दिए हुए हैं px के, बाकी दो जीरोस हमें निकालने हैं। अब मेन फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? इन दो जीरोस से हमें क्या निकालना है? पॉलिनोमियल जिसकी ये दो जीरोस हैं। पहले एग्जांपल्स में हमने मेथड क्या यूज किया था? अगर ये एक जीरो है यानी कि x माइनस 2 प्लस √3 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर हो जाएगा इस वाले जीरो से, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक फैक्टर होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 2 माइनस √3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x माइनस 2 प्लस √3। अब इसमें ये x माइनस 2 वाला पार्ट कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस √3 एंड x माइनस 2 प्लस √3। ये आ गई अब हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली फॉर्म, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a² माइनस b²। सो अब दिस विल बी इक्वल टू a² आ गया हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो गया x² माइनस 4x प्लस 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3।
सो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जो कि आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल जिससे हमें इस px को डिवाइड करना है दूसरा फैक्टर निकालने के लिए। एक मेथड हमारा ये है। अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इससे इजी मेथड भी हम ले सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, हमें ये पॉलिनोमियल निकालना है जिसके दो जीरोस ये हैं। अब इसके लिए रिकॉल करो, हमने मेथड किया हुआ है। अगर हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, लेट्स टेक देम एज अल्फा एज 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा एज 2 माइनस रूट 3। अब ये दो जीरोस हमें दिए हुए हैं, हमें पॉलिनोमियल निकालना है gx। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज दिस प्लस दिस, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो सम आ जाएगा 4। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, अगेन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 माइनस 3 1। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट है तो उससे हम पॉलिनोमियल निकाल लेंगे gx, सो विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस केस में जो हम कांस्टेंट ले लेते हैं k, वो हम 1 ले रहे हैं, यानी कि सिंपली हमारा पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट इज 1। सो हमारा ये gx आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। एज यू कैन सी दोनों में हमारा सेम पॉलिनोमियल आ रहा है, तो whichever method you want to follow you can follow that, both are correct। जब हमें दो जीरोस दिए हुए हैं हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम ये मेथड यूज करके भी पॉलिनोमियल gx निकाल सकते हैं। इसके आगे के स्टेप्स हमारे सेम होंगे। गिवन पॉलिनोमियल px को हम इस gx से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे गिवन पॉलिनोमियल 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को। अब यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2x रेज़ टू पावर 4 है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू दिस इज 2x रेज़ टू पावर 4, दिस इंटू दिस इज 8x क्यूब, सो दिस इज माइनस 8x क्यूब, 1 into this is plus 2x square, subtracting, this gets cancelled, minus 9 plus 8 is minus x cube, 5 minus 2 is plus 3x square plus 3x minus 1। नेक्स्ट स्टेप, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आएगा हमारे पास माइनस x इंटू दिस इज माइनस एक्स क्यूब, minus minus plus, so this is plus 4x square plus 1 into minus x is minus x, again subtracting, this gets cancelled, here we get minus x square plus 4x minus 1। now minus x square plus x square, this goes by minus 1, सो वी गेट माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 है, तो प्लस 4x माइनस 1, subtracting everything gets cancelled here, so our remainder is 0। it means this is another factor of px, let's name it as qx। so qx आ गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, splitting the middle term, 2x स्क्वायर minus 2x plus x minus 1, 2x common, x minus 1 is left, plus 1 common, x minus 1 is left, x minus 1 common, 2x plus 1 is left, equating each factor to 0, we get x is equal to 1 or minus 1 by 2, यानी कि all the zeros of this polynomial are हमने दो जीरोस निकाले हैं, 1 एंड माइनस 1 बाय 2, और बाकी दो जो दिए हुए थे 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल द जीरोस बिकॉज क्वेश्चन में ऑब्टेन ऑल द जीरोस, सो आंसर लाइन में आपको सारे मेंशन करने हैं, जो दिए हुए हैं वो भी मेंशन करने हैं। सो दिस कंप्लीट्स द रिवीजन फ्रॉम माय साइड एज वेल एज द चैप्टर related to the polynomials according to the CBSE syllabus. Thank you.
We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.